अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे पावर लूम्स की जो कि बंद कर दी गई हैं। इस पर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं और तब सिचुएशन ये थी कि जो पावर लूम्स हैं वो बंद होने वाली हैं, क्योंकि पावर लूम्स मालिकान का ये कहना है कि बिजली बहुत महंगी, हम बिल अदा नहीं कर सकते, हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है, धागा जो है वो उन्हें सही रेट पर नहीं मिल रहा। तब भी तकरीबन 30 से 35 हज़ार लूम्स थी जो बंद कर दी गई थी, और अभी जो है वो सारी लूम्स जो हैं बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है वो मज़दूर तबका है। तो कुछ मज़दूर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं, जिस तरह से अब ये लूम्स जो हैं ये बंद कर दी गई हैं, इससे आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? ਲੂਮਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਵਾਹ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, तो इसके बाद क्या सोचा है आपने? लूम्स तो बंद हो गई, आप क्या करेंगे? ਹਮ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਜਦ ਲੂਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵਿਹਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। मालिकान से आपने गुजारिश नहीं की? ਮਾਲਕ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ठीक है, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से अब लूम्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, तकरीबन 50% मेरे ख्याल में? ਹਾਂਜੀ 50% ਜਿਹੜਾ ਲੂਮਾ ਬੰਦ ਆ। ਕੁਛ ਤਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਛਾੜ ਆ, ਕੋਈ ਤਾਣਾ ਛਾੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੂਮਾ ਬੰਦ ਆ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਦਮਾ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਆ। 27 ਤਰੀਕ ਆ ਅੱਜ, ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਆ ਇਹ 370 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ, 140 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਡਏ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦਾ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਆ, ਇੱਥੇ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਲੂਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। 16,000 17,000 ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਏ ਦਿਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦਾ। ਚੀਨੀ ਆ, ਘਿਓ ਆ, ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਆ। ਮਜਬੂਰ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 8 ਲੂਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਲੂਮਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਗੇ 5,000 6,000 ਤਨਖਾਹ ਹਫ਼ਤਾ ਬਣਦਾ, ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ 3,000 2,500 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 7,000 8,000 ਰੁਪਈਆ 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 3,000 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 2,500 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 6,000 7,000 6,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਤੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਧਰ ਤਨਖਾਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆ। 2,000 5,000 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ 15,000 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੋ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੰਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਆ है। ऐसे ही है, मजदूर परेशान है। तो ये लूम्स बंद होने से एक तो आपका काम कितना मुतासिर हुआ और घर कितना मुतासिर हुआ? घर तो बहुत मुतासर हुआ है, लेकिन जो है इस वक्त तो गुजारा करना मुश्किल हो गया। घर में जो पैसे लेके जाते हैं वहाँ घर में लड़ाई पड़ती है कि इतनी तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं होता,
लेकिन ये जो हमारी हुकूमत है ये क्या कर रही है इस वक्त? हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये जो सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं हमारा इनसे कोई तल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा तल्लुक़ अगर पीटीआई से है तो ये मज़दूर जो हैं इन्होंने वोट दिया तब्दीली के नाम पे। अगर इनके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा फिर हम आज तो एहतजाज कर रहे हैं सिर्फ अकेले, लेकिन आज के बाद हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर महंगाई कम ना हुई तो हम अपने बीवी बच्चों समेत सड़कों पे आएंगे और तब तक नहीं वापस जाएंगे जब तक हमारी जान भी चली जाए तो कोई मसला नहीं। ये लोग मैं ये कहूँगा कि महंगाई इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो महंगी ना हो। तेल मिलता है, हर चीज़ महंगी है, आटा घ्यो चीनी। इन्होंने हमेशा यही कहा है महंगाई करके कि दूसरी हुकूमत की वजह से जो पिछली हुकूमतें हुई हैं। हालांकि ये एक रेफरेंस देते हैं कि पिछली हुकूमत ने बिजली के सौदे महंगे के, बिजली इस वजह से महंगी हुई है। इनको बंदा पूछे कोई, गंदा भी उन्होंने सौदे किए थे, चीनी के भी उन्होंने सौदे किए थे जो महंगी हुई है। हर चीज़ महंगी है, कोई ऐसी एक चीज़ भी नहीं है जो महंगी ना हो। हर हफ्ते हम चीज़ लेने जाते हैं ना बाज़ार से कोई चीज़ें ख़रीदने के लिए, हर हफ्ते महंगी हुई होती हैं। चीनी 115 से 20 रुपए मिलती है, घी 350 रुपये हो गया है। ये 150 रुपये था पिछली हुकूमत में, अब 350 रुपये हो गया, 200 रुपये ज़्यादा हो गया। यानी कि हर चीज़ महंगी हुई है। इतना इन्होंने यानी कि काम बंद हुए हैं और महंगाई आसमानों के पहुंच गई है। लोग परेशान हैं, जो किराए पे रहते हैं उनके तो जीना महाल हो गया। इस तरह के हालात हुए हैं। जिस कदर महंगाई हो चुकी है तो इस महंगाई से आप कितने मुतासिर हुए हैं, क्या कहेंगे? महंगाई हर तरह से हर जिस तरफ भी देख लें हर तरफ महंगाई है। पेट्रोल महंगा होगा तो तकरीबन सब के साथ महंगाई करनी पड़ती है। अगर ट्रांसपोर्टर हैं वो भी अपने किराए ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उन्हें के जो मसलन हम कोई भी चीज़ ख़रीदने जाएं बाज़ार से महंगी मिलती है, तो हमारी मजदूरी जो उजरत है वो कम है और चीज़ें जो भी ख़रीदने जाएं मसला अपना ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम महंगी मिलती हैं। ठीक है, तो अब क्या सोच है कि अब जिस तरह से ये लूम्स बंद हो गई हैं मज़दूरों के लिए यकीनन मुश्किल है। इससे आगे तो एहतजाज ही हम कर सकते हैं और तो हमारा कोई मसलन चारा नहीं है। अगर हमारा कारोबार नहीं चलता, मजदूरी नहीं मिलती तो हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज के अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं। ठीक है, एहतजाज अब मज़दूरों के लिए एक आखिरी हल बन चुका है कि जब तक वो इतना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे तो चीज़ें हल नहीं होंगी। मज़दूर लीडर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आपने एहतजाज की कॉल तो दी है, एहतजाज भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर इस एहतजाज के बाद भी कोई लाएअमल नहीं होता, कोई इस पर पेशरफ नहीं होती, फिर क्या करेंगे? जी, हमारा जो आज का एहतजाज है ये हमारे जो हुक्मरानों को बताने के लिए है कि फैसलाबाद जो कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, यहाँ के मज़दूरों का शहर कहा जाता है, यहाँ के लाखों मज़दूर बेरोज़गार हो चुके हैं। आप फैक्ट्री एरियाज़ के अंदर देख लें कि पावर लूम को उठा कर कबाड़ खानों में बैठ रहे हैं। अब तो ना तो मालिक के अंदर सकत रही है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर सकत रही है, ना ताजर भी रो रहा है, सनतकार भी रो रहा है, मजदूर भी रो रहे हैं। अब जाएं तो जाए कहाँ पे? मुतालबा तो करना है हमने रियासत मदीना के दावेदारों से, जो रियासत मदीना की बात तो करते हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कल यहाँ पे बुज़दार साहब आए हैं, सरीना होटल में बड़े इफ्तिताह करके गए हैं। वहाँ पे हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने एक लफ्ज़ तक भी शहर के मजदूरों के लिए बोलना गवारा नहीं किया, जिस पर हमने फैसला किया है कि अभी जब हमारा ये काफिला घंटाघर चौक पहुँचेगा तो आइंदा का जो लायामल होगा, हम ये जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो हमारे जो वज़ीर मशीर हैं, इनके घरों के सामने हम भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और अगर इस यकम के बाद भी उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, घी की कीमतों में इजाफा किया, तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर इनके घरों के बाहर जाकर एहतजाजी धरने देंगे, क्योंकि हमने इनको वोट देकर मुंतखब किया था हालात कार बेहतर करने के लिए। अब इन्होंने वोट लेकर हमें जो भाषण दे रहे हैं कि जनाब फलां मुल्क में तो इतनी तनख्वाह है, वहाँ पे तो ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, भाई आप उसके मुताबिक उजरत भी तो दें। आज हमारा सनतकार जो है वो बिजली का बिल बनाने से कासर है। अभी आज ही लोगों के बिल आए हैं 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार। अगर एक मजदूर, आप इनकी हालत तो देखें, ये जब 12 या 14 घंटे काम करते हैं, अपने आप को इन्होंने मशीन बनाया हुआ है मजदूरों ने, और इनकी हालत है कि आधे से ज़्यादा हमारे 50% मजदूर जो कि टीबी की मर्ज़ का शिकार हैं, ये आपके सामने खड़े हुए हैं। किस वजह से? कि हमारे बच्चों को रोटी मिल जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि रोटी मिलना तो दरकिनार, आज हम एक रोटी के नवाले से भी तरस चुके हैं। और आए दिन कभी गटर का बिल आ गया, बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया,
तो ये सारे बिल, पानी का बिल आ गया, ये सारे जो बिल हैं बरा के हम तंग आ चुके हैं। अब हमने फैसला किया है कि अगर हमारी ये बात ना सुनी गई तो हम मुंतखब नुमाइंदों के घरों के बाहर एहतजाजी धरने देंगे। तो लगता है इसके बाद आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप ये एहतजाज पहले भी रिकॉर्ड करवा रहे थे कि ये इस तरह से सूरत हाल पैदा हो गई, पहले भी लूम्स बंद हुई, अब फिर लूम्स बंद हो गई हैं। अगर फिर भी आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, फिर हमने अब जो फैसलाबाद से तहरीक, एक बड़ी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, फिर हम कोशिश करते हैं इस दायरा कौर को वसी कर दिया जाएगा, पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। पहले मरहले में हम चौक घंटागाह से ताजर, मजदूर, इंडस्ट्री इत्तेहाद के प्लेटफार्म से एक बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। इसके बाद पूरे पंजाब के अंदर ये तहरीक फैल जाएगी। मजदूर अपनी इंडस्ट्री से बाहर निकलेंगे, सड़कों पर होंगे, किसान निकलेंगे, यूनिवर्सिटियों से तलबा निकलेंगे, क्योंकि वो भी फीस नहीं अदा कर सकते। जो हमारे मजदूरों के बच्चे हैं वो जाके अपने जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फ़ीस अदा नहीं कर सकेंगे, तो वो सड़कों पर आएंगे और सरापा एहतजाज होंगे। हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब रियासत मदीना में किए गए वो वादे उनको याद कराते हैं कि वो वापस नहीं लेंगे। ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, तेल की कीमतों में इजाफा, इस यकम के बाद अगर किया गया तो पूरा फैसलाबाद सड़कों पर सरापा एहतजाज होगा उसी दिन। ये तो मुतालबात है मजदूर लीडर की, उन्होंने हमें बता दिया कि ये मुतालबात है। मैं आपसे ही जानूंगी कि आपको लगता है कि ये जितने भी मुतालबात आप लोग रख रहे हैं ये मान लिए जाएंगे? जी इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे, जिधर भी होएंगे धरने दे के एहतजाज करेंगे। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, घी, चीनी, ये सब इतना महंगा हो गया कि मज़दूर जो है बिल्कुल 18,000 तनख्वाह है इसकी, और जो बिजली का बिल, गैस का बिल वो घट जाता है तो उसके 15 दिन में ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद कर्जा आ जाता है। अभी बसों का किराया इतना हो गया जिसका हिसाब नहीं है। मज़दूर बहुत ज़्यादा परेशान है। हम इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से गुजारिश करते हैं कि खुदा ना ये मज़दूरों के बारे में सोचे, खुदा ना मज़दूरों के बारे में सोचे, गरीब आवाम के बारे में, और गरीबों की दवाएं ले। आप बद दवाएं नहीं ले, उनकी दवाएं ले। और मेरी यही गुजारिश है बस इमरान खान साहब। तो अभी फैसलाबाद में जितनी भी लूम्स हैं वो सब बंद करके आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, या कुछ लूम्स हैं जो बंद हुई हैं? नहीं, सब बंद करके अगर नहीं मानेंगे तो और शहरों से वो भी काफिले आएंगे, बिल्कुल जाम करेंगे, महंगाई के फुल कोशिश करेंगे। जितने भी जिधर के भी हैं सेक्टर हैं, झांग के हैं, लाहौर के, जिधर भी, सब बंद, हर जगह पे एहतजाज शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो। जैसे इन्होंने भी बताया कि आप लोग अगर अभी भी ये एहतजाज जो है इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो अपना ये दायरा कार बढ़ाने का भी सोच रहे हैं आप जी लोग? बिल्कुल बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। जैसे हम कहते, अगर जितने भी अहदेदारान हैं उनके घरों के आगे जाके हम बैठेंगे, धरना लगाएं उनके घरों में आगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे जाएंगे, आसमान बुज़दार आसमान बुज़दार के ऑफिस के आगे लाहौर जाएंगे, हर जगह जाएंगे। लेकिन ये कि हम महंगाई उस कंट्रोल करने के बारे में हमसे इमरान खान साहब से हमारी गुजारिश है कि महंगाई खुदा रहा इसको कंट्रोल करे। बहुत आवाम परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, मैं आपसे बात करती हूँ, इस बढ़ती हुई महंगाई पर क्या कहेंगे? जी देखो, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, गरीब बंदा बहुत तंग आ, मजदूर बंदा एक कारीगर आ, किराए ते रहिंदा, 10-15 हज़ार कमांदा वा, 6,000 बिल आ जाता, बच्चों की रोटी पूरी करेगा कि ये अपना बिल भराएगा। जे बिल भरांदा उन्होंने बच्चे भुखे रहणगे तो कित्थों गुजारा करनगे, नाले पढ़ाई अपनी कित्थों कर, बच्चों की तलीम कित्थों पूरी करनगे। गौरमेंट नूं चाहिदा इस बारे सोचना चाहिदा। वो कहंदे सीगे कि वो चोर आ कि उन्होंने महंगाई इन्नी करती आ, हुण आप इन्ने ज़्यादा महंगाई कीती आ, इस करके इस ते तवज्जो दी जाए ताकि मजदूर बंदा जिहड़ा वो अपनी बेरोज़गारी तो बच सके। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल है जो कि मैं पूछना चाहती हूँ। देखें, अब जिस तरह से मौसम भी बदल गया है, सर्दियाँ आने वाली हैं और कोई भी इंसान कपड़ा पहने बगैर तो रह नहीं सकता। जब कपड़ा मार्केटों में नहीं जाएगा, आप लोग नहीं बना के भेजेंगे तो क्या होगा? जी, पावर लूम फैक्ट्री मालिकान है, क्योंकि कपड़े में उनको पैसे इतने कम मिल रहे हैं, उन्होंने कपड़ा फ़रोख्त करना बंद कर दिया है। जब वो डैंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर नहीं जाएगा तो लामहला वो जो इंडस्ट्री है सारी की सारी, डैंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग, साइजिंग, ये सारी की सारी बंद होती जाएगी। पहले ही उनकी 2 शिफ्टें, कोई 1 शिफ्ट रह चुकी है। अब पावर लूम मालिका ने कपड़ा फरोख्त करना ही बंद कर दिया है। अगर उनको घर में 60 रुपये मीटर पड़ रहा है तो बाज़ार में 45 रुपये रेट है, तो वो किस तरह अपना कपड़ा फरोख्त करें? वो इतना घाटा जो है, इतना जो उनको नुकसान हो रहा है वो बर्दाश्त करने का मुतहम्मल नहीं है। अब तो हम मालिकान के साथ मुतालबा भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर भी सकत नहीं रही। बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, तो अब वो मालिकान, मजदूर, ताजर सब मिलकर हम सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त तक सरापा एहतजाज रहेंगे जब तक ये रेट और इनको कमी नहीं कर दी जाती या कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। ठीक
ठीक है। अच्छा, ये सूरत हाल भी थी कि कोई पहले ये था कि जो कपड़ा है वो सस्ते दामों आप फ़रोख्त करते हैं, लेकिन जो धागा है वो महंगा मिलता है। जी बिल्कुल। इस मर्तबा हमारे पाकिस्तान के अंदर काटन बहुत बड़ी तादाद में हुई है, लेकिन उसका जो अपना माफिया है हमारा सूतर मंडी के अंदर बैठा है, जो यारन का उन्होंने मसनूई बहरान पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से पावरलूम माल जाता है उसको धागा नहीं मिलता। तो ज़ाहिर है कि वो जब ताना बाना स्टार्ट होता है तो मज़दूर बेरोज़गार होते हैं, मज़दूर बेरोज़गार होते हैं तो हफ्ते में 3 या 4 दिन काम मिलता है, उसके साथ उसका घर का जो चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो मज़दूरों ने तांग आमद बजांग आमद फैसला किया है कि वो इंशाल्लाह अगर इन्होंने यकम नवंबर को अगर इन्होंने फिर इसी तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया तो पूरा फैसलाबाद सड़कों पर सरापा एहतजाज होगा। ठीक है, एक और मजदूर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जब पेट्रोल उसकी हुकूमत में बनता था वो तो कहता था चोर है। अब तुमको क्या कहें, हम तो यही कहना चाहते हैं, मजदूर आदमी हैं। ठीक हो गया, मजदूर यकीनन परेशान है। इनका यही कहना है कि धागा जो है वो महंगे दामों मिल रहा है, कपड़ा जो है वो नहीं बनेगा, और जब कपड़ा आगे फ़रोख्त नहीं होगा तो काम कैसे होगा। तो ऐसा करेंगे भाई, हम आपको जो कपड़ा मार्केट है वहाँ लिए चलेंगे, वहाँ पर जो कपड़ा मार्केट में बैठे हुए शॉपकीपर, उनसे बात करेंगे कि उनको अब किन मुश्किलात का सामना है। लेकिन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी मैं कपड़ा मार्केट में मौजूद हूँ और जो लोग कपड़ा फ़रोख्त करते हैं उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगी, अब जो है पावर लूम्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो कहते हैं कि हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, हर चीज़ महंगी है, फ्यूल की बात करें तो वो भी महंगा है। लेकिन अब जब पावर लूम्स बंद होंगी, अभी तो आपके पास कपड़ा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये टाइम भी आएगा कि आपको कपड़ा सप्लाई होना बंद हो जाएगा, तब आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ पावर लूम का मसला नहीं है, डॉलर की वजह से सब चीज़ें ही वो महंगी हैं। पेट्रोल 15 रुपये लीटर बढ़ने की वजह से और डॉलर की वो 10 रुपये की वो कीमत में इजाफा होने की वजह से कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। और जो फाइबर बाहर से आता है उसकी वजह से वो फाइबर की वजह से सूतर वो रोज़ाना तेज़ होता है और उस पर सट्टा भी हो रहा है। जिस बंदे को पता है कि रोज़ाना सूतर बढ़ना है, उसने लाजमी, जो बंदा कोई काम भी नहीं करता वो भी जाके सूतर ख़रीदेगा। उस वजह से पावर लूम वाले का जीना मुहाल हो गया। इस वजह से अगर यही सिलसिला चलता रहा तो गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान खाना जंगी होगी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं कि जब ये लूम्स तो बंद हो गई हैं, उन्होंने यही कहा है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे ये लूम्स दोबारा से नहीं खुलेंगी, तो आने वाले दिनों में अपना कारोबार कैसे देख रहे हैं, किस हद तक मुतासिर होगा? जी, फैसलाबाद जो है वो टेक्सटाइल सिटी है, जैसे कि मैनचेस्टर भी है फैसलाबाद। तो मैं ये कहूँगा कि फैसलाबाद जो है ये सनत की वजह से पहचाना जाता है, जो इंडस्ट्री का धुआं है उस वजह से फैसलाबाद की पहचान है। तो अकेला आप लूम को अगर डिस्कस करें, मेरे ख्याल से ये नहीं है। अकेले लूम के साथ देखें, कारीगर जो है लूम का जो है तकरीबन 5 लाख कारीगर इस वक्त मुतासिर हो रहा है। इसके साथ साथ साइजिंग इंडस्ट्री, जब लूम नहीं चलेगी तो साइजिंग इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी। साइजिंग के साथ साथ जो हमारी डाइंग इंडस्ट्री है वो भी बंद हो जाएगी। इसके साथ पीछे वो जो धागे की मिलें हैं वो भी बंद हो जाएंगी। इसके साथ पूरी चेन जो है वो बंद हो जाती है। जब से ये डॉलर 110 से 170 पे 175 पे हो चुका है, और इसके साथ साथ आप देखें कि पेट्रोल की कीमत जो है ये आसमान से बातें कर रही है, जिसकी वजह से धागा जो है वो इस वक्त बहुत हाई उसका रेट हो चुका है, जिसकी वजह से जो कपड़ा इस वक्त 150 रुपये मीटर हमें दुकान पे खुद पड़ रहा है, तो वो ग्राहक 130 रुपये 125 रुपये मांग रहा है, क्योंकि वो पहले रेट पे ख़रीदना चाह रहा है। मगर इस वक्त वो डॉलर की फ्लक्चुएशन और साथ साथ जो सूतर मंडी में रेट धागे का बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, इस वजह से वो ग्राहक जो है वो रेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। हमारी मार्केटें इस वक्त वीरान हो चुकी हैं। ये तो अभी की बात है कि यकीनन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। अब कपड़ा सप्लाई नहीं होता, अगर लूम्स मालिकान जो हैं वो इस एहतजाज के बाद ये सिचुएशन आ जाए कि नहीं मुतालबात माने जा रहे हैं, फिर भी वो अपना काम दोबारा से शुरू करते हैं, तो ये जो रेट हैं ये डबल भी हो सकते हैं। बिल्कुल, रेट जो है ये इस वक्त वैसे भी देखें, आज जो है
कल वज़ीर आला जो हैं हमारे यहाँ पर आए हैं और आज देखें फैसलाबाद की सड़कों पे ताजर और जो हैं दूसरे जो हैं हमारे मज़दूर और इंडस्ट्री वाले जो एहतजाज कर रहे हैं आज हमारे, तो ये क्या वजह है, क्यों आज सड़कों पे आए हैं? सड़कों पे इसी वजह से आए हैं कि क्योंकि वो उनकी मिलें आज बंद हैं और दुकानदार आहिस्ता आहिस्ता, ये क्या होगा अगर मिलें बंद हो गई और कपड़ा नहीं होगा, कपड़ा हम लोग ख़रीदेंगे नहीं, तो ज़ाहिर बात है फिर दुकानें भी हमारी बंद होंगी और दुकानें बंद हो जाएंगी, पूरा एक ये पहिया जो है वो जाम हो जाएगा। हमेशा देखें फैसलाबाद के साथ अगर कपड़े का कारोबार चलता है तो इसके साथ सारे कारोबार मुंसलिक हैं, इसके साथ सारे कारोबार चलते हैं। अगर कपड़े का कारोबार नहीं हो रहा तो कोई भी कारोबार नहीं होगा। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई बहुत सारी चीज़ों से जो रिलेट करती है, आपका पेट्रोल महंगा हो जाता है, आपकी बिजली महंगी हो जाती है, आपकी हर चीज़ जो है महंगी हो जाती है। तो जिस तरह से पहले भी पेट्रोल महंगा हुआ, समरी जो है वो 5 रुपये की दी गई और महंगा 10 रुपये हो गया, क्या लगता है आगे मज़ीद भी ये रेट जो है ये ज़्यादा होगा? देखिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अवाम को तो पहले ही कह दिया था कि आपने घबराना नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अब सोच लिया है कि घबराना नहीं है कि अगर रेट 5 रुपये से 10 रुपये भी बढ़ा दिया जाता है तो ये हो सकता है फिर 5 रुपये की समरी भेज रही है, तो अब तो अवाम फिर तवक्को कर रही है कि इन्होंने 15 रुपये लीटर बढ़ा देना है। अगर ये इसी तरह सूरत हाल रही तो ये हमारी इंडस्ट्री और तमाम अदारे जो हैं वो तबाही के दहाने की तरफ जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट भी मुतासर होगी इससे। अगर देखें हमारे बिजली के रेट ज़्यादा होंगे, गैस के रेट ज़्यादा होंगे, तो इससे हमें एक्सपोर्ट के आर्डर नहीं मिलेंगे। जब हम गाहक को रेट दूसरे ममालिक में रेट अपना देंगे कुछ, तो किसी और मुल्क से उन्हें सस्ता मिलेगा, तो जारी बात है उन्होंने एक्सपोर्ट वहाँ से करना है। तो हमें चाहिए कि एक्सपोर्टर को भी फैसिलिटेट करें और आम लोकल जो है मईशत उसके लिए बहाली के लिए भी बेहतर इक़दाम करें। ठीक है, अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद को टेक्सटाइल का हब कहा जाता है। अब जो सिचुएशन पैदा होती जा रही है, क्या अब हम इसको ये कह सकेंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं ना, दुकान ख़त्म होती जा रही है। कपड़े की जो है ना कपड़े की जो मार्केट है ना वो ख़त्म होती जा रही है, आस्ता आस्ता श्रिंक होती जा रही है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। अगर किसी के पास रास है थी ना, वो भी उन्होंने जो कोविड आया ना इसमें सब खा लिए। अब लोगों के जो पैसे ना वो खा रहे हैं लोग। अब हालात ना कारोबार के बहुत ज़्यादा ख़राब है। 10-10 दिन हो जाते हैं, 8-8 दिन हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं होती। हम होलसेल की मार्केटों में बैठे हुए हैं और हमारा कारोबार ऐसे है जैसे हम ना बिल्कुल फारग है। तो क्या हम ये भी तसव्वुर कर सकते हैं कि जैसे आप लूम्स मालिकान तो यही कहते हैं ना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिजली के बिल हम लोग कैसे पूरे करें, मज़दूरों को हम लोग कहाँ से सैलरीज दें? कारोबार ये जो आपको कपड़े का कारोबार है जिससे आप कह रहे हैं अभी कोई आपको प्रॉफिट नहीं होता, उस तरह से नहीं चल रहा, कल को ये भी हो सकता है कि आपको भी कारोबार बंद करना पड़े? सूरत तो यही नज़र आ रही है कि जो सूरत अब बनती जा रही है, कारोबार बंद ही होने हैं, क्योंकि ना मुलाजम की तनख्वाह दी जा रही है, ना कि बिजली के बिल दे रहे हैं। ठीक है, और अगर जहाँ तक धागे की बात करें, जो धागे का रेट है वो बढ़ जाता है, इसके बावजूद जो कपास है उसकी पैदावार भी ज़्यादा हुई है। अगर कपास की पैदावार अब हो रही है ना, मगर वही बात आ जाती है जो पहले भाई बात कर रहे हैं कि सट्टाबाजी है ना वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो भी धागे में बढ़ रहा है ना, किसी के पास 10 रुपये ना वो कहते हैं चलो मैं जाके बोरे खरीद लेता हूँ। शाम को लूम वाले को ज़रूरत होती है, जो जेन्युइन जाता है ख़रीदार उसको मिलता नहीं है, उसको रेट बढ़ के मिलता है, ये बात है। ठीक है, जो बेसिक प्रॉब्लम आ रहा है लूम्स वालों को वो आ रहा है धागे का, कि धागा जो है वो पीछे से महंगा मिल रहा है। तो आप वजह इसकी क्या समझते हैं कि कपास की पैदावार भी ज़्यादा है, सब चीज़ें सही भी चल रही हैं, धागा फिर भी महंगा है? असल में जो धागे वाले हैं ना, इधर हमारे जो सूत्र मंडी है फैसलाबाद में, इसमें चंद एक लोगों का होल्ड हुआ है। उन्होंने जो पीछे स्पिनिंग मिले हैं उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो स्पिनिंग मिल वालों की मजबूरी होती है, फिर बाहर नहीं भेज सकते। गवर्नमेंट को ऐसा लॉ और ऐसा कानून बना दे कि एक लूम वाला खुद डायरेक्ट अगर स्पिनिंग मिल से अपनी मर्ज़ी से एक आध गाड़ी की ज़रूरत है वो ले सके तो उसको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये लोगों ने एक अपना इजारादारी सूत्र मंडी के ताजरों ने की हुई है, वो अपनी मर्ज़ी से 5 रुपये बढ़ा देते हैं, अगले दिन वो 2 रुपये कम कर देते हैं। कोई समझ नहीं आती लोगों को। लूम वाला बेहद परेशान है और लूम में बंद करने पे बिल्कुल हो सकता है कि शायद कुछ लूम में बंद भी हैं, आधी से ज़्यादा लूम में बंद करने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बाज़ार में जो वैरायटी वो
आगे हमें रेट पे के हिसाब से रेट मांगते हैं, उनकी कास्ट से हम 10-15 रुपये नीचे रेट उनको बताते हैं, क्योंकि हमारा बायर जो ख़रीदार है वो हमें 10-15 रुपये नीचे लगाता है। हमारी मजबूरी है, हमने लेके 1-2 रुपये कमा के माल देना है। तो इसलिए सूत्र मंडी में जो एक तो जो सिड्डेबाजी का बाज़ार जो है ना गर्म है, भाई ने कहा है कि लोग जो कपड़े से रिलेटेड नहीं है वो गल्ला मंडी में कारोबार कर रहे हैं या कोई लकड़ मंडी में कारोबार कर रहे हैं, वो रात को 5-10-15 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, अगले दिन उनको 5-7-10 हज़ार रुपया मिल जाता है। तो उन्होंने अपना बिज़नेस बनाया हुआ है, लेकिन जेन्युइन लूम वाले को धागा फिर उस रेटों पे लेना पड़ता है जो रेट निकलता है या जो लोग सिट्टे की वजह से रेट को ऊपर ले जाते हैं ना, तो फिर उनके लिए नहायत परेशानी है। तो दुकानदारों की बात कर लूँ, जो हमारे फैसलाबाद में तकरीबन जितनी होलसेल मार्केटें हैं उनकी पोजीशन ये है कि लोगों ने 10-10, 12-12 दिन हो गए हैं किसी गाहक का मुंह नहीं देखा। वजह ये हो गई है कि डॉलर इतना महंगा हो गया है, डॉलर की वजह से माल भी महंगा हो गया है। माल की वजह से गाहक को हम रेट बताते हैं, वो कहता है पिछले रेट पे माल दें, तो पिछले रेटों पे तो हम माल नहीं दे सकते, तो हमारी भी मजबूरी है, हमने भी ज़ाहिर है पीछे से माल ख़रीद के आगे देना होता है। तो हवा का आलम है, कोई गाहक नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमें अपनी लेबर जो दुकानदार के मुलाजमीन हैं उनको समझ ले के अपने पास से पैसे देने पड़ रहे हैं, वो उनके पैसे सैलरी नहीं निकल रही। हमारे जहाँ समझ ले के माल पैकिंग खाते हैं उनकी लेबर के पैसे नहीं निकल रहे, उनकी मजदूरी देनी मुश्किल हुई है। ये गवर्नमेंट जब से आई है खाने पीने की चीज़ों का तो चलो बुरा हाल किया है इन्होंने, चलो उसमें तो लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, चीनी घी आटा जो भी मामला आता है गरीबों का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये ताजरों को अगर नहीं बचाएगी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। अगर मेरे अपना ज़ाती तजर्बा, मुझे 32 ईयर हो गए हैं कारोबार में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो तहरीक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फैसलाबाद से अगर कोई मूवमेंट बनता है तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत नहीं रहती, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी या नून लीग की थी या जो भी थी। तो ये इधर फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ से जब मज़दूर बेरोज़गार हो जाएंगे वो सड़कों पे आ जाएंगे, जब सड़कों पे आ जाएंगे फिर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं होता उनको घर में वापस भेजने का, फिर वो आगे लॉ एंड ऑर्डर का। तो यही जिस चीज़ की बात आप अभी कर रहे हैं कि मज़दूर जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो सड़कों पे निकल आएंगे, अगर यही एक्शन कुछ टाइम पहले ले लिया जाए तो क्या हालात बेहतर नहीं हो जाएंगे? अच्छा, ये जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले जो लूम मालकान है वो हमारे दोस्त भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप 8 दिन के लिए एक दफ़ा हड़ताल कर लें लूमों की, तो धागे वालों को कम से कम ये पता चल जाएगा कि यार लूमों वाले ने धागा नहीं ख़रीदा, तो वो थोड़ा सा रेट रुक जाएंगे। तो उन्होंने बात नहीं मानी, वो आज भी पछता रहे हैं कि आपने हमें 1.5 महीना पहले कहा था कि लूम एक दफ़ा बंद कर लें, ये एक दफ़ा बाज़ार गर्म हो रहा है धागे का तो रुक जाएगा, तो नहीं मानी। लेकिन बहरहाल अभी वो पछता रहे हैं। अभी जो सूरत हाल बन गई है उसमें तो जो हमें लग रहा है कि जो लूमों के लोगों ने बाहर से लूमें मंगवाई थी उनके रेटों में 5-5, 6-6 लाख रुपया कम हो गया डॉलर बढ़ने की वजह से भी। जो लूम समझ ले 30-30 लाख रुपए की लोगों ने मंगवाई थी, अभी वो बाज़ार में उसका 22-23 लाख रुपया लूम का रेट लग रहा है। कि वजह यही है कि जो लूम वाला कास्ट करता है उसको कास्ट महंगी आती है, बाज़ार में रेट कम होता है, वो कहता है इतनी इन्वेस्ट करें करोड़ों रुपए और शाम को 10-15-20 हज़ार रुपया जेब से दें, उसका क्या फ़ायदा। तो लूमें जो बाहर से हम इंडस्ट्री भी मंगवा रहे थे ना वो भी उस लॉस में जा रही है, अभी वो उसके भी रेट नीचे आ गए हैं इंडस्ट्री के भी। बिल्कुल ठीक है। अभी इन्होंने एक बात की है सट्टेबाजी की, कि सट्टेबाजी होने की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो क्या जैसे आपको भी पता है इनको भी पता है कि सट्टेबाजी हो रही है, तो क्या हमारी जो इंतज़ामिया बैठी है उन्हें नहीं पता? एक्शन तो उन्होंने ही लेना है। इंतज़ामिया नहीं ना इलेक्शन ले रही, अगर वो एक्शन ले ले तो फिर उनका क्या मकसद। हमारी ये डॉलर है, डॉलर की वजह से सब कुछ बढ़ रहा है, डॉलर नीचे होगा सारा कुछ ठीक हो जाएगा मसला। तो मैं आपसे पूछूंगी कि यही जो एक्शन है सट्टेबाजी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और भी बहुत लोग जानते हैं, तो हमारी इंतज़ामिया जो है वो एक्शन क्यों नहीं लेती है इस पे? जी मैं बताना चाहता हूँ कि सट्टेबाजी इसमें कम इफेक्ट कर रही है। इसके साथ देखें जो सूतर मंडी में इस वक्त धागा बन रहे हैं ना, मिलें धागा बना रही हैं, वो इस वक्त एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही हैं।
हुकूमत एक्सपोर्टर को जो है सब्सिडी भी दे रही है, जिसकी वजह से वो उनकी जो है लोकल जो है जो इंडस्ट्री है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। उनकी तवज्जो जो है जितना भी फैसिलिटेट कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है ना वो तबाही के दहाने पे आ गई है। अगर ये धागे की एक्सपोर्ट बंद कर दें, उससे यकीन करें कि धागे की कीमतों में भी कमी होगी और हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी। अगर हमारी इंडस्ट्री बंद होती है तो हमारा मज़दूर जो है वो बेरोज़गार होता है। अब देखें हमारी रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं ख़रीदने वाली, खुर्दोनोश की, आटा, चीनी, दालें, हर चीज़ जो है देखें हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि वो हमारी पहुंच से बाहर हो चुकी है। अब तो ये जो है अब कपड़े की आइटम कह दें तो इन्होंने कहना ये तो लग्जरी आइटम है, फिर तो इनको चाहिए कि वो पत्तों के ज़माने में हम चले जाएं और वो पत्ते इस्तेमाल करने शुरू कर दें। तो इनको चाहिए कि जो ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिससे जो है ताजर जो है खुशहाली की तरफ जाए। अगर ताजर खुशहाल होगा तो यकीन करें हुकूमत खुशहाल होगी। जब भी पाकिस्तान पे कोई भी आफत आई है, ज़ल्ज़ला आया है या ये सैलाब आए हैं, तो उसमें आप देखें ताजर जो हैं फ्रंट लाइन पे खड़े रहे हैं। ताजरों ने ही ट्रकों के ट्रक यहाँ से भेजे हैं, दालों के, चीनी के, कपड़े के, हर चीज़ के इन्होंने ट्रकों के ट्रक भेजे हैं और इनको चाहिए ताजर को फैसिलिटेट करे ताकि मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाए। बिल्कुल ऐसे ये तो ताजर बरादरी थी जिन्होंने अपनी मुश्किलात हमें बताई हैं। हाँ, और जो लूम्स वाले हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं और लूम्स बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है लूम्स की, जो कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि बंद कर दी जाएंगी, लेकिन अभी हालात ये पैदा हो गए हैं कि लूम्स बंद कर दी गई हैं। तो कुछ मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि पावर लूम्स बंद होने से उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि लूम्स बंद हो चुकी हैं, अब इससे किस हद तक मुश्किलात पैदा हो गई हैं आप लोगों के लिए? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा पैदा हैं। बिजली बहुत महंगी हो गई है, धागा बहुत महंगा हो चुका है, जो हमारे लूम्स का मुश्किल हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अब ये लूम्स बंद हो गई हैं तो आप लोग किधर जाएंगे फिर? कोई और काम कर लेंगे और क्या करना है। तो मतलब आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि किसी तरह से ये लूम्स बंद होने से बच सकें? कोशिश तो कर रहे हैं, कोई सुनवाई सुनता कोई नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, इंतजामिया के आगे हो रही है, कोई सुनता नहीं भाई कोई भी। क्योंकि पहले तो ये सूरत हाल थी ना कि जो पावर लूम्स मालिकान भी थे वो भी सिर्फ इसलिए लूम्स उन्होंने चला रहे थे कि वो यही कहते थे कि अगर हम लूम्स बंद कर देंगे तो मज़दूर का क्या होगा। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि लूम्स बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, तो आप किस हद तक परेशान हुए हैं इससे? तो है जी, जब किसी का कोई काम ही ना रहे तो फिर परेशानी तो आती है, ये तो साफ ज़ाहिर है। तो काम तो बंद हुए नो काफ़ी देर हो गई, ऐसे ही चलता है बस। गुजरोकात जो थोड़ा बहुत चलता है। तो पहले ऐसा भी हुआ था कि जो शिफ्टें थी वो कम कर दी गई थी, तब भी कुछ मज़दूरों को निकाला गया था? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से पहले तो ये सूरत हाल चल रही थी कि पहले अगर 2 या 3 शिफ्टें थी तो वो शिफ्टें भी कम कर दी गई थी, कुछ मज़दूर थे उन्हें भी निकाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद लूम्स तो चल रही थी, लेकिन अभी लूम्स बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। इसकी वजह ये है कि लूम वाला लूम चलाता है सूत्र के ऊपर, तो कपड़ा तैयार करके देता है। तो महंगाई की वजह से सूत्र के रेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से लूम मालकान को परेशानी का सामना है। तो जितनी इन्वेस्टमेंट कम होगी उतनी लूम कम चलेगी। ज़ाहिर बात है, अगर सूत्र इतना महंगा है तो वो लूम के जो मालिक है वो कहाँ से सूत्र ख़रीद के अपनी लूमें चलाएगा। तो अब तक आप लोगों ने कोई कोशिश नहीं की किसी तरह ये सूरत हाल बेहतर हो सके? बेहतरी के यही चांस हो सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई सूत्र में रिलीफ मिले, तो सूत्र की कीमत में नमी आए, तो लूम वाला सूत्र खरीदे, फिर कपड़ा तैयार करके आवाम के लिए मुहैया करे। तो अभी तक किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल सका आपको? कुछ भी रिलीफ नहीं मिला, किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला किसी को भी। दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, तमाम अशिया की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो आपने भी कोई मुतबादल अब ढूंढ लिया है कि जिस तरह से अब लूम्स तो बंद हो गई हैं, तो जो मज़दूर तबका है उसके लिए काफ़ी परेशानी है कि वो यहाँ अगर मज़दूरी कर रहे हैं तो अब दोबारा से एक जगह और ढूंढें मज़दूरी के लिए? मजदूरी करते हैं,
काम करते हैं, कोई से नहीं जान के फ़ायदा उठाता है। हाँ, यकीनन जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि जिस तरह से पावर लूम्स हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप लूम्स बंद होने पर क्या कहेंगे? लोग मजदूरों ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ जी। तो इस हुकूमत को क्या मैसेज देते हैं, क्योंकि सूरत हाल ये तब से पैदा हुई है जब से ये हुकूमत आई है, और अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो 6 माह के अंदर अंदर तकरीबन 30 से 35 लूम्स तो पहले ही बंद हो चुकी थी, और अब ये लूम्स भी बंद कर दी गई हैं। हमारी हुकूमत के सामने ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपनी आवाम के ऊपर तवज्जो करें, चाहे वो अमीर तबका है चाहे वो गरीब तबका है, तमाम की तरफ देखें, सोचें, तो फिर बेहतरी आ सकती है। बेहतरी की उम्मीद ही की जा सकती है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्या बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, बेहतरी नहीं हो सकती जी। लुमा बंद आ, पर कारीगर परेशान आ, बच्चे महंगाई नहीं आ, खर्चे नहीं पूरे होंगे, तो मालका तो मंगते मालक भी नहीं देंगे। अगर कारोबार बंद हो गया, सारा कारोबार की वजह ने सारा कुछ चलना। जो कारोबार बंद है तो कोई सारी चीज़ बंद है। तो आप लोगों ने अभी तक कोई कोशिश नहीं की, कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया? नहीं, कोई नहीं किया जी। तो फिर क्या आप लोगों को हल क्या नज़र आता है कि अब तो लूम्स भी बंद हो गई हैं, मजदूर किधर जाएगा? जो लूम बंद होगी कोई और काम कर लेंगे, कोई मंडी जाएंगे, कोई करेंगे, मजदूरी करेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे साथ लूम जो है, पावर लूम, इसके जो है ऑनर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बादशाह, हमने मज़दूरों की बात तो सुन ली, कुछ टाइम पहले भी हम इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं, लेकिन तब ये था कि मालिकान यही कहते थे कि हम खुद भी मजबूर हैं कि सिर्फ मज़दूरों की वजह से हमने जो लूम्स हैं उनको हम चला रहे हैं, लेकिन हमें वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अब आप लोगों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है और ये जो लूम्स हैं ये भी बंद कर दी गई हैं। बिल्कुल, आपने मेरी बातें आपने ही सारी कर दी। अब मैं क्या कहूँ इस पे। पिछले 3 महीने 4 महीने से हम जो अपने मज़दूर की सर्वाइवल के लिए कर रहे थे कि फैक्ट्रियाँ बंद नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब ये हमारे लिए बिल्कुल फिजिबल नहीं रहा। और धागा, आपका पेट्रोल, डॉलर, हर चीज़ महंगी हो रही है। इवन के जो इंटरनेशनल किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से ना एक्सपोर्ट फिजिबल रही है, ना लोकल में बल्कि हमने तो सेल बंद की है। सेल सिर्फ इस वजह से बंद की थी कि हमारे बारे में कोई चीज़ नहीं थी। एक चीज़ हमें 100 रुपये में कास्ट आ रही थी, उसका 80 रुपये रेट था बाज़ार में। तो मतलब कितनी देर तक हम नुकसान कर सकते थे। हाँ, आखिर हमने मजबूरन पहले 2 दिन के लिए बंद किया, फिर 3 दिन के लिए बंद किया। अब मुश्किल ही ये मतलब जो हालात यहाँ पे चल गए हैं कि हम चाहते भी हैं लेकिन चला नहीं सकते। लेकिन आज आप लोगों ने एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा दिया है, तो क्या इस एहतजाज के बाद आपको लगता है कि आप लोगों की आवाज़ उस तरह से सुनी जाएगी? मुझे नहीं को लगता, क्योंकि हम पिछले 3 महीने से मुख्तलिफ एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, लेकिन ये बड़ी बेहस गवर्नमेंट है। मतलब ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इवन के अभी तक वो मिलों वालों को तो बुला लेते हैं, छोटी इंडस्ट्री को बुलाते ही नहीं, कोई बात ही नहीं। पिछले 3-4 महीने से हम खप डालें, बल्कि जब से रमज़ान गुजरा है हमारे हालात इसी तरह जा रहे हैं। किसी ने कोई बुलाया ही नहीं, कोई बात ही नहीं आज तक सुनी। आपका एहतजाज देखें, इस तरह से अगर आप लोग एहतजाज करते हैं, क्योंकि देखें कपड़ा जब तक आप मार्केट में नहीं भेजेंगे, लोगों तक कपड़ा नहीं पहुंचेगा। ये तो आप लोगों का एहतजाज का एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि कपड़े के बगैर सर्दी हो, गर्मी हो, जैसा भी मौसम हो, हर इंसान ने कपड़ा तो पहनना है। आप लोगों का एहतजाज इस तरह से सूदमंद होगा, आप कपड़ा सप्लाई नहीं कर रहे हैं अब, तो आपको लगता है जिस तरह से आप लोग कपड़ा सप्लाई, जाहिर सी बात है जब बनेगा नहीं तो सप्लाई कहाँ से होगा, तो क्या लगता है फिर भी कोई आवाज़ किसी हद तक सुनी जा सकती है, क्योंकि कपड़ा तो चाहिए मार्केट्स में? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि कपड़ा हम तो सप्लाई करते रहे, लेकिन अब हमारी बिल्कुल जो हमारे बस में नहीं रहा। हर चीज़ में 15 से 20% नुकसान हो रहा है। कितनी देर तक हम नुकसान करेंगे? हमने आखिर ये फैक्ट्रियाँ चलानी हैं, ये ना हो कि बाद में सूतर मंडी वाले हमारी लूमें उठा के ले जाएं। तो हमने ये एक डर के मारे बंद किया है ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जाए। जो कपड़ा हमारे पास पड़ा है उसमें से वो हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर कोई बेहतरी होगी तो फिर बेचेंगे। तो इससे यकीनन आपका कारोबार मुतासिर है। अगर मजदूर तबका परेशान है तो जो लूम्स मालिकान है वो भी परेशान है। कोई भी अपना कारोबार इतनी आसानी से बंद नहीं कर सकता। चीज़ रुक गई है, जैम लग गया है, बिल्कुल हर चीज़ रुक गई है। आगे देखेंगे। ये अभी तो थोड़ी सी बगले में जा रहे हैं सूतर मंडी वाले और वो स्पिनिंग वाले, लेकिन अगर सारा सेक्टर बंद हो जाएगा तो ये धागा इन्होंने कहाँ फिर बाहर एक्सपोर्ट करेंगे? यहाँ नहीं। कि आप लोग को महंगा मिलता है, तो जो धागा बेच रहे हैं वो क्या बताते हैं कि आखिर इनके रेट्स में इतनी ज़्यादा क्यों इन लोगों ने ज़्यादा किए हुए हैं? बस वो उसमें कुछ काट
पावर है वो 2 दिन 4 बंद की हैं, वरना हम ये तो नहीं कर सकते कि हम मज़दूर को फारग कर दें। हमें तो डेली लेके आना होता है, डेली बेचना होता है और डेली पे हमने सारा ये काम चलाना होता है। हफ्ते बाद इनको फिर वेजेस देनी होती हैं, तो वो मतलब काम अब किसी तरह भारी नहीं रहा, इसीलिए हमने बंद किया है कि धागा इतना ज़्यादा कोई मतलब फसल अच्छी हुई है काटन की, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि 30 से 35% हमारी पिछले साल से प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, लेकिन रेट्स जो हैं रेट भी 30। क्योंकि कहा यह जाता है कि धागा भी इम्पोर्ट कर नहीं, धागा इम्पोर्ट हो रहा है क्योंकि हमारी जो काटन है वो कुछ तकरीबन 14 से 9 पे आ गई है। हमारी जो पूरी डिमांड है वो 14 मिलियन बेल है, तो वो जाहिर है जो गैप है वो बाहर से आता है, वो तो आना ही आना है बाहर से। तो बाहर तो अब थोड़ी सी महंगाई हुई है, लेकिन ये तो पिछले 3 महीने से इन्होंने काम मतलब बिल्कुल हर चीज़ इन्होंने अपने कब्ज़े में की हुई है। ख़ासकर स्पिनिंग सेक्टर है जो वो अपने सब सेक्टर पे जुल्म कर रहा है। अगर उसने इसी तरह ये जुल्म रखा तो सारे सेक्टर ख़त्म हो जाएंगे, वो अकेला बचेगा। फिर किसी भी चीज़ का पहला स्टेप होता है एहतजाज, वो आप लोगों ने शुरू कर दिया कि आप एहतजाज जो है वो कर रहे हैं कि आपके मुतालबात सुने जाएं। अगर ये एहतजाज काम नहीं करता तो फिर आपका अगला लाएअमल क्या होगा? हमने ये कोई एक दिन नहीं शुरू कर दिया, इससे पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मुख्तलिफ लेटर भी लिखे हैं सारी मिनिस्ट्रियों को, इवन के अपीलें भी की हैं अपने जो मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे सारे हमने वो अपीलें भी की थी। लेकिन आज हमने एक मतलब आखिरी हद पे जाके ये काम जो बंद किया है, पहले सेल बंद की फिर काम बंद किया। अगर ये नहीं आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम घंटाघर एक कैंप लगाएंगे, वहाँ बैठेंगे। अगर नहीं हमारी बात सुनी जाती तो फिर मज़दूर और सारे फिर सड़कों पे। मज़दूर तो आपके पास यकीनन आते होंगे कि लूम्स बंद ना की जाएं, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। नहीं, वो भी समझते हैं हमारी जो तकलीफ़ को, उनको भी पता है। वो कभी दौर होता था कि वो कहते थे नहीं हम आप चलाएं, या मतलब अब वो भी समझदार हो गया है मज़दूर। वो समझता है कि कितनी देर तक नुकसान करेगा मालिक, वो हमारे साथ है। और हम जब घंटाघर बैठेंगे वो मज़दूर और ये सारे लीडर हमारे साथ होंगे। अभी कितनी, क्योंकि पहले तो तकरीबन 35,000 के करीब लूम्स थी जो बंद हुई थी, अब कितनी लूम्स हैं जो बंद हुई हैं? उनकी तादाद क्या हो सकती है? मतलब आप समझें कि 50% बंद है, 50% चल रही है, और जो वो चल रही है वो भी मतलब नुकसान में है। तो कितनी देर तक वो भी लोग नुकसान करेंगे? ऐसे अब जो लूम मालिकान है वो भी परेशान हो चुके हैं कि वो कब तक जो है वो नुकसान उठाएं, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ इसलिए लूम्स चला रहे थे ताकि जो मज़दूर तबका है वो परेशान ना हो, लेकिन कोई भी अपना कारोबार इस तरह से चला नहीं सकता अगर उसको फ़ायदा ना हो। तो तकरीबन 50% लूम्स हैं जो फैसलाबाद में बंद कर दी गई हैं, और इनके मुतालबात यही हैं कि जो तमाम चीज़ें बेहतर किया जाए, धागा उन्हें सस्ता दिया जाए ताकि वो कपड़ा बनाकर आगे बेच सके। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।